जी करो जनाब। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਂਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਸੀ ਤਸਵੁਰ ਕਿ ਲੌਂਡੀਆਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ इस्लाम ਚ लौंडिया ਦਾ सतर की है, क्या सतर है लौंडियों का इस्लाम में? ਲੋਂਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਹ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਨਾ ਸਾਹ ਲਵੋ ਜ਼ਰਾ। ਫਿਰ ਸਬਲ ਤਹਮੁਲ ਵੀ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਭਾਈ? ਇਸਲਾਮ ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਸਾਂ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਸਬਰ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਂਡੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਂਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਂਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਲੋਂਡੀਆਂ, ਸ਼ਰੀ ਲੋਂਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਲੋਂਡੀਆਂ। ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਂਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਲੋਂਡੀਆਂ। ਤੇ 70 ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਨਬੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ 70 ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਹੋ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਤੇ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 70 ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਵੀ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ ਨਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਟੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਲਵੋ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ। ਤੇ ਉਹ ਐ ਵੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਵਹਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੇਂਦ ਕਿੰਜਦੇ ਸਨ, ਥੱਲੋਂ ਕਿੰਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਜਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟੀ ਸੀ ਜ਼ਨਾਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਆ ਬਚਿਆ ਨਸ ਇਥੋਂ ਬਾਂਦਰਾ ਜੀ, ਹਰਾਮੀ ਉਲ ਨਸਲ ਹਰਾਮੀ, ਹਰਾਮੀ ਉਲ ਨਸਲ ਹਰਾਮੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਓਏ, ਹਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੇ? ਜਿੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਂਝ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਂਝ ਦੀ ਚਪੇੜ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਂਡੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਂਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੋਂਡੀ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਜ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਏ ਉਂਝ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਇੰਜ ਲਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਦੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਲਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਲਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰਵਰਸੀ, ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹੋਏ? ਕੰਟਰਵਰਸੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, तो कंट्रोवर्सी बन जाती है, समझ आई कि नहीं? तो कंट्रोवर्सी नहीं करनी, समझ आई कि नहीं? हाँ, ते अगले दी जात नूं लैके फिर ना कन्न लाल करने, वो फिर किसी मजहब ते नहीं जाना, किताबां नहीं खोलनियां फिर। ठीक हो गया ना? ए गल ते बात सारे इतराज तुहानूं इस्लाम च नजर आंदे ने, अपना नहीं पता जी। वालेकुम सलाम जनाब। तो इस इस्लाम के बारे में ना आप जवाब दोगे?
इस्लाम के बारे में हाँ, वो एक आप छोटा क्या- सवाल है। आप क्या है? सवाल ये है कि आप क्या है, किस मजहब से मैं हैं? तो मुसलमान हूँ मुसलमान है? जी। सच्ची नहीं मुच्ची? जी जी, मुझे अभी एक बंदे ने सवाल किया ना, मैं कह रहा हूँ तो सच्ची मैंने मुच्ची कहा मुझे तो मुसलमान ही जवाब है? नहीं आता, किसी और से पूछे। जी, मुसलमान ही है सच्ची मुच्ची वाले कि झूठी वाले? मैं वीडियो खोल के दिखा देता हूँ, आप देख लो, नीचे नजर आ जाएंगे। हाँ, खोल के दिखा दे। दिखाएं। वड्डी तस्वीर करो भाई, वड्डी तस्वीर करो। चलो जी, बहा दियो फिर। वीडियो दिखाओ भाई। वीडियो बहान लगे सो भाई, बच्चे परा हो जाओ भाई, बच्चे ते खवातीन। हाँ जी, हेलो, की देखना पसंद करोगे? हाँ दसो, सवाल का जवाब नहीं हो देना। बूथा दे इधर करो। वेखो की मैं तेन डरदा पिया तेरे को। बोलदा कोई होर ही पिया ते तस्वीर ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? मैं ही बोलता पिया, ये हैंड फ्री लाइए, मैं ही बोलता पिया। अखा नाल वेख थोड़ा नजर आ सी तेन। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਲਵਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਖਤਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। नहीं इतना बेहुदा सानू तरबियत नहीं मिली हुई ना। तुसी बार बार तुसी पूछे ना, बार बार पूछे ना तू मुसलमान है, तो मैं हाँ तो तेन कह रहा ना, कोई मैं हुण बढ़ते तो नहीं आ गया। ਹਾਂ तू कौन है? कादियानी है? ਚੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਫਿਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੁਣੋ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਏ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਰ ਭਾਈ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ देना था ना। सवाल यार कर ले भाई। हाँ मेरी जान, सवाल ये है कि मेरा एक बंदे ने मुझसे सवाल किया, उसने बोले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ना नबी आएंगे, जो नबी हम मान रखते हैं, तो आप बताओ कि नबी आएंगे या नहीं आएंगे, आप किस पे ईमान रखते हो? ये आपसे पूछो। सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं आपके, देखें सिग्नल रेड हो रहे हैं, चेक करें। मैं एक बार फिर मैं करता हूँ, एक बार फिर ना मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आएंगे जिस पे हम ईमान लाएंगे, या कोई नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के बाद आएंगे नबी, हजरत अल्लाह पाक कोई भेजेगा? ये नबी पूछ। आना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी आना है, अच्छा। जो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे, उन्होंने अभी तशरीफ ला। जी जी, उन्होंने भी यही बोला है। अच्छा, तो आप ये बताएं, जो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वो अल्लाह पाक उनको नबी मतलब है इधर पैदा करेंगे? अल्लाह पाक ने ये बोला है कि मैं पैदा करके नबी भेजूंगा, या वही पहले वाले नबी जो थे वो जिंदा हैं उनको भी नीचे उतारूंगा? जी पहले वाले जो जिंदा हैं अभी आसमान पे मौजूद हैं, वो ही जिंदा आसमान से नाज़िल होंगे, वो पैदा नहीं होंगे। वही आएंगे ना, वही आएंगे ना। तो वो कहते हैं कि भाई, हाँ वही वो कहते हैं कि भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पे आएंगे ना तो वो नबी ही होंगे या नहीं? मैंने कहा वो तो नबी तो होंगे, वो बोलते हैं फिर आखिरी नबी वो हैं। मैंने कहा इसका तो हमें पता नहीं है, ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, तो वो अल्लाह पाक ने उनको ऊपर उठाया तो ज़मीन पे तो ज़रूर अल्लाह पाक ने उतारेंगे ना। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मैंने उनको ज़मीन पे उतारूंगा, ठीक है, जो आएंगे। तो मैंने यही उनको बात किया, मुझे बोलते हैं वो काफिर हो आप। जिसने ये सवाल किया वो पीछे एक बंदा- फ्रॉड थी। भाई सुन तो लेना यार, अब जिसने ये सवाल किया ना वो कादियानी है, ठीक है, वो कादियानियों हाँ, की यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। सुन तो लेना वो यार। बोल रहे नहीं, वही भाई आखिरी सुन नबी तो है, ले ईसा अलैहि यार, सलाम आखिरी सुन तो नबी है। अपनी नप के रखी, अगले बंदे से सुनते ही नहीं पे तुसी। अच्छा बात ये है कि वो कादियानी है, उनको ये कहें कि यार वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे वो नबी होंगे कि नहीं, वो आखिरी नबी होंगे कि नहीं, वो तो चल दूर की बात है, वो बाद में हम करेंगे। पहले तो ये बता कि तुम्हारा मिर्जा कादियानी जो है वो एक जानी इंसान था, हाँ जी, शराबी इंसान था, समझ आई कि नहीं? भाई एक मिनट ठहर जाओ, साहब भी ले लो कि तुसी घुगू घूम बन के सवाल सुन के आ गए हो, कोई गल ही नहीं जे कीती।
ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ लाई बैठा मैं तो कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਮਾਈਕ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਨਾ ਹੁਣ, ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 31 ਅਗਸਤ 1938 ਦਾ शुमार है, सफ़ा नंबर 6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ है कि हज़रत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं, अगर उन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ। फिर लिखा है कि हमें हज़रत मसीह मऊद पर इतराज़ नहीं क्योंकि वो कभी कभी जना करते थे, हमें इतराज़ मौजूदा खलीफा पर है क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਮਕਤੂਬਾਤੇ ਅਹਿਮਦ ਜਿਲਦ ਚਹਾਰਮ ਸਫਾ 248 मकतूब नंबर 113, आपके अरके काफूर तरक कर दिया था और बजाय इसके कोको वाइन इस्तेमाल करना शुरू किया और स्टाकश एमलेशन, मगर मैं समझ नहीं सकता। ताज्जुब की जगह है कि अभी एक दिन भी इस तब्दीली पर नहीं गुजरा था। करीबन निसफ रात के बाद या कुछ पहले सोने की हालत में मुझको सख्त बेकरारी, नहायत दर्जा की हरारत मालूम हुई और दिल चाहा है कि तमाम कपड़े उतार कर बाहर निकल जाऊं। कुछ समझ नहीं आती थी कि इस कदर घबराहट और गर्मी क्यों है और लोग लिहाफ में लेटे हुए सर्दी की शिकायत करते हैं, मगर मुझे गर्मी महसूस होती थी। नब्ज में भी तेजी आ गई, ऐसी गर्मी के जिसका असर खतरनाक महसूस होता था। तुसी उन्हां नूं सवाल करना है कि मिर्जा कादियानी ज़ानी, मिर्जा कादियानी शराबी, ओदा की करना जे? ओ मर्ज़ियो कादियानियो दसो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है या नहीं आना? ओ जनाब जिंदा ने या मुर्दा ने? ओ आखिरी नबी होणगे या पहले होणगे? इन्हां सारे सवालों का तलक मिर्जे कादियानी दी ज़नाकारी, हरामकारी, चोरी चकारी ते शराब नोशी ते रंडीबाजी दे नाल की ये कादियानियों दसो। कादियानी, हाँ जी हुण बोलो जी मलक साहब। मजाक है वो, इसी वजह से तो उन लोगों ने मुझे नीचे उतार के ब्लैक लिस्ट किया। उन लोगों ने बोला ये हमारी बातों में नहीं आ रहे, इसको भगा ही दें। हवाले नोट वाले समझ नहीं ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਫਿਰ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ, ਨੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਨੈਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨੈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਲਾ ਦਿਓ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਧੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆਏ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਬਲਾਕ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਕੁਲੀਆ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੀਮੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੰਡੀ ਬਾਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਸਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ ਸਹੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਮੁਸਲਸਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈ, ਗੜਬੜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਸਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਫ ਢਿੱਲਾ ਮੌਕਫ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਭਾਈ ਕੋ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਬੇਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਬਸ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾੜ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਲਵੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੋਲੋਗੇ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਸੀਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਲਦੁਲ ਜ਼ਨਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੇ, ਬਸ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਸਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਕਾਲੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਬੇਟਰਸ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖੋਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਾਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਐ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਲਾਇਆ ਉੱਧਰ ਹੀ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੁਤਵਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖੁਤਵਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟੁਰਨਾ। ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉੱਠ ਜਾ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨੇ ਪਏ ਉਂਝ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਖੋਲੋ ਹਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੁੱਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਲਈ ਜਾਓ।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਆ- ਡਿਬੇਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਬੇਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਕਦੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੱਸੀ ਹੋਏ ਕਦੀ? ਨਾ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਬਈ, ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ ਵੇ? ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਫਰਾਡੀਏ ਖੰਜ਼ੀਰ ਔਰ ਬਦਕਾਰੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲ ਚ ਹੋ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਦੀਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਲੋਕੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਸ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਬਈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ ਬਈ। ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲ ਹੱਕੁ ਮੁਰਰਨ, ਸੱਚ ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਚ ਆ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਔਰ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਆਜਜ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰੋੜਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਲਚਕ, ਕੋਈ ਢਿੱਲਾਪਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है हाफिज साहब? जी अल्लाह शुक्र। मैं हाफिज नहीं जे है जनाब, कारी साहब हो? कारी भी नहीं है। बयान तो तुसी कारियां वाले कर रहे हो भाई। कारी अलग हुंदा है जिन्हों किरात दा इलम होए, हाफिज वो हुंदा है जिन्हों हिफ्ज़े कुरान जिन्हें कीता है। मैं दोवें ही नहीं है। अज खैर ये मिर्जा नूं घेरिया है सारियां ने। हाँ जी, हाँ जी। वो ਤੁਸੀਂ खास ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਈ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਪਿਆ 39 ਬੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹ ਚੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਬਸ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਟੋਰੋ ਭਾਈ ਟੋਰੋ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੰਬੀ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੰਬੀ ਲਾਓ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿੱਤਰਾਂ ਜੋਗੇ ਨੇ ਬਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਲੈਣੀ ਜੇ, ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਲੈਣੀ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਲੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਲਿੱਤਰਾਂ ਜੋਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰੋ ਬਸ। 4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਧ ਪਤਾ ਦਿਮਾਗ ਠਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ इंशाल्लाह। चलो मैं माइक म्यूट करने लगा हूं, पार्टी शुरू। जी उस्ताद मोहतरम, अभी ना वीडियो पहले भी देखे थे, दोबारा उस वीडियो के ऊपर थोड़ी सी हम रोशनी डाल रहे थे कि वो जो क्रिश्चियन है, नो मुस्लिम, लेकिन वो पहले एक्स क्रिश्चियन थे वो। अच्छा, उनको कॉल की इस मिर्ज़ा इंजीनियर कज़ाब दजाल ने कॉल की, कहता है देखो तुम मुसलमान हो चुके हो, पहले क्रिश्चियन थे, तो बताओ तुम्हारी किताबों के अंदर ये नहीं लिखा था, ये जो लफ्ज़ है माज़अल्लाह उसने जो गाली दी ये नहीं लिखा। थोड़ा जा जाना जे
ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗਾਇਬ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਰੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਾਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਸਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੱਜਾਲ। ਰਿਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੱਜਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ 295 ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਕੈਨ ਵੀ ਉਸ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੇਮ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਤੋਹੀਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੁਸਾਖੀਆਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਸਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 16 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛਪਵਾਏ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੇਰਾ ਸਮਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਸ ਹੈ, 10,000 ਦਾ 1000 ਸਾਲਾ ਛਪ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲਾ ਛਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ जी जी उस्ताद मोहतरम, वो फिर जो एक्स क्रिश्चियन नो मुस्लिम उसने ये वीडियो बनाई, उसने कहा कि 23 अगस्त को मिर्ज़ा इंजीनियर इस कज़ाब दजाल ने मुझे की कॉल करके इसने मुझे कहा कि बताओ, ये रिकॉर्डिंग कर रहा था तो इसने कहा कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी किताबों के अंदर ऐसा नहीं लिखा। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं लिखा। उसने कहा वो जो लिखा हुआ है एंटी क्राइस्ट, उसने कहा भाई देखो वो तो उसके मुतल्लिक ये है कि वो ईसा का इनकार करेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक उनकी तस्दीक की है, जो उन पर नाज़िल हुआ उसकी तस्दीक की है। तो जो एंटी क्राइस्ट लिखा हुआ है वो तो उसके मुतल्लिक लिखा हुआ है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का मसीह का इनकार करेगा। फिर लिखा जी वो बताएं जी वो झूठे नबी का नहीं जिक्र लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो उसका तो जो लफ्ज़ आप तुमने बोला है कज़ाब दजाल, जो तुमने लफ्ज़ बोला है वो तो हमारे यहाँ मुस्तामिल ही नहीं है, इस्तेमाल में ही नहीं है। और इस माना में जो कि इस्तिलाही माना जो तुम्हारे अंदर पाया जाता है इस्लाम के अंदर, तो वो तो कभी भी क्रिश्चियनिटी ने इसको ना इस्तेमाल किया। और दूसरी बात है कि इसके मिस्ताक भी नबी अलैहिस्सलाम को नहीं ठहराया, उनका भी मिस्ताक नहीं ठहराया। और वो जिन मानों के अंदर जिस वो शिद्दत की वो गाली है उसमें वो कभी भी किसी भी दौर में मुस्तामिल नहीं हुआ। अगर हम इस्तेमाल करें तो हम खुद पाकिस्तान में रहते हैं, अगर उसको समझें और इस्तेमाल करें हम तो हमारे ऊपर भी 295C होगी। ये उन्होंने खुद ये अपनी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है या जो भी उन्होंने बयान दिया उसके मिर्ज़ा इंजीनियर की कॉल के दौरान, वो सारा उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर अपलोड किया हुआ है। इतनी वाज़िया दलाइल के बावजूद अगर ये मरज़ई मिर्ज़ा इंजीनियर के छोकरे अगर उसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम को दी हुई गाली को ढूंढने के लिए माज़अल्लाह के अपने आप मिर्ज़े खंजीर को बचाने के लिए ये ढूंढते हैं ऐसी बातें, मैं कहता हूँ तुफ़ है इनके ऊपर कि इधर उम्मत नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद और सलाम, नबी अलैहिस्सलाम के मिलादे मुस्तफ़ा जो है वो उसको मनाने पे लगी है। ये कज़ाब दजाल नबी अलैहिस्सलाम के जो गालियाँ हैं उनको दी हुई गालियों को मैं वो सुनाता हूँ आपको। ये अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि वो सुना दें, मैं आपको वो सुनाता हूँ वीडियो, वो रिकॉर्ड सुनिए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर तबसरा करते हैं। अच्छा उस्ताद जी, आप वीडियो चला रहे उससे पहले ये अगर कोई भाई जो है वो ये जो मुफ्ती साहब ने नया रसाला लिखा है इसके ऊपर वो रब्ता करना चाहते हैं तो उनके व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। उनकी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो उनका नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर पर रब्ता करें। मान भाई आवाज़ नहीं आ रही।
جی یہ سنیے ذرا، میں بس 1 منٹ دیں مجھے، میں چلاتا ہوں. ایک تو ویڈیو کے اندر ہے، ایک ہے علیحدہ سے ان کی نا، ایک مفتی صاحب کے ساتھ ہے، ایک علیحدہ ہے، وہ میں چلا لوں ذرا. یہ سنیے گا، یہ ذرا نا ایڈ آ گئی ہے. یہ 23 اگست بروز ہفتہ محمد علی بھائی کی مجھے کال آئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ کیا جو ہے وہاں پہ لفظ دجال موجود نہیں ہے بائبل میں. تو میں نے کہا بالکل لفظ دجال موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اینٹی کرائسٹ. تو میں نے کہا اینٹی کرائسٹ کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ وہ مسیح علیہ السلام کا انکار کرنے والا ہوگا، وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہوگا کہ میں مسیح ہوں، شوبدہ بازیاں کر کے دکھائے گا. تو میں نے کہا کہ بالکل وہ تو اینٹی کرائسٹ بالکل الگ تھلگ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اچھا جھوٹا نبی نہیں لکھا. تو میں نے کہا جی جھوٹا نبی لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جھوٹے نبی کو عربی فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ جو آپ اصطلاح کے بارے میں بات کر رہے ہیں، عیسائیوں کے ہاں نہ یہ مستعمل ہے، نہ وہ ان اصطلاحات سے واقف ہے، نہ آشنا ہے، نہ ہی وہ ان کے ہاں استعمال کی جاتی ہے. بہت مناسب تو یہ تھا کہ انجینئر محمد علی بھائی کو ان کے متعلقین، ان کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹ یہ بتاتے کہ حضرت آپ یہ جو الفاظ جو بہت غیر مناسب، غیر شائستہ اور بد تہذیبی کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے لونڈا لپاڑا ہے، جیسے چھوکرا ہے، اور جیسے یہ جو الفاظ دجال ہیں، یا اس طرح کے کئی مقامات پہ انہوں نے کئی ایسے جو کہ بالکل ان کے شاعر نشان نہیں ہے، بجائے یہ کہ ان کے اسٹوڈنٹس ان کو اس بات کی تلقین کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے متعلقین صحابہ کرام ائمہ کے بارے میں ایسے الفاظ مناسب نہیں ہے. لیکن آج انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو ایک بابا بنا کے تو اپنے بابا جی کے دفاع میں وہ اللہ اور اس کے رسول، صحابہ کرام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا. جی لودھی بھائی. اس طریقے سے پریشرائز نہیں کرتا. جی یہ سنی ہے میں نے ان بھائی کی یہ ویڈیو جو ہے وہ سنی ہے، بالکل زبردست انہوں نے صحیح مرزا جونیئر کو جواب دیا ہے. تو آپ فرما رہے تھے ان کے پاس ان کی اس کی ریکارڈنگ بھی ہے. ہاں وہی ماما بھائی وہی میں کرنے لگا. تو اگر مے بھی انہوں نے لانچ کی ہو یا نہ کی ہو تو بہرحال وہ ایک ثبوت کے طور پہ ان کو وہ بھی جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے، جو جنہوں نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے ان بھائیوں تک اور وکلاء تک یہ آڈیو ان کی پہنچانی چاہیے. چلیں یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ عثمان بھائی معذرت کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو. جی جزاک اللہ جی. دیکھیں انبیاء کرام کا جو ایک ان کی رسپیکٹ ہے، جو ان کی ایک عزت ہے، ان کا جو ایک پروٹوکول ہے، ایک عام انسان میرے جیسا آپ جیسا ایک عام انسان، یہ اس کا لیول ڈیفرنٹ ہے اللہ رب العزت کی نظر میں بھی، اور انبیاء کرام کا لیول ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو جب ہم لوگ بغور پڑھتے ہیں نا تو ہمیں عام انسانوں کے بارے میں سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون نظر آتا ہے، جس میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی ہے، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور ان کے یعنی کہ عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک عام انسان کے لیے اللہ کے الفاظ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ اندھا. ٹھیک ہے، لیکن اسی جگہ جب ہم ایک نبی کا ذکر پڑھتے ہیں جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جب ان کا ذکر پڑھتے ہیں جہاں پر ان کی اپنے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے لیے جب اللہ پاک کے الفاظ آتے ہیں تو یہ آنکھوں کی بینائی ختم ہونے کا بھی ذکر نہیں کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئی ہیں. دیکھیں اپنے نبی کے لیے اللہ پاک کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ اس لفظ میں کوئی یعنی کہ عیب نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، عیب نظر نہیں آ رہا. اللہ نے اپنے انبیاء کو عیبوں سے پاک بنایا ہوا ہے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اپنے نبیوں کا جو پروٹوکول رکھا ہے وہ الفاظ میں بھی اللہ پاک نے ایسا رکھا ہے کہ ان الفاظ کے اندر بھی عیب نہیں ہے. اندھا پن ایک عیب ہے، لیکن اپنے نبی کے لیے اللہ پاک وہ لفظ نہیں استعمال کر رہے. تو پھر جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر آتا ہے
ठीक है, जहां पे इस ज़ात अक़दस का मुकाम आता है तो अल्लाह पाक उस वक्त साफ अल्फाज में आयत नाज़िल फरमा रहे हैं कि ए लोगों, अपनी आवाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऊंचा मत करना, वरना तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। ये अपना नबी के, अपने महबूब का प्रोटोकॉल है यार। इन चीजों को समझो कि उनके लिए किसी किस्म का हल्का लफ्ज भी, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मेरे मुंह में खाक, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा ईमान खत्म हो जाता है वहां पर। उसने अपनी जात को बचाने के लिए ये कहा है कि देखो कि अगर 6 अरब लोग मुझे 2 नंबर कहते हैं, ये जो बात आपने की है ना मुहाफिज भाई, के अल्लाह फरमाता है कि हजूर अलैहिस्सलाम की आवाज़े मुबारक से अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करो। और ये आयत ना सुनहरी जालियों शरीफ के ऊपर ये लिखी हुई है। यही वजह है कि आज तक मैं हजूर की जालियों के करीब नहीं जा सका, आज तक नहीं। 2 साल मैं रहा हूं मदीना शरीफ के अंदर और रोजाना हाजिरी होती थी, लेकिन आज तक मैं सुनहरी जालियों शरीफ के करीब नहीं गया, सिर्फ इसी आयत की वजह से कि कहीं मेरे सांस की आवाज भी बुलंद ना हो जाए, वो बेदबी हो जाएगी। आखिर आपके सांस की, आप जितना भी चुप रह लें, सांस की भी तो एक आवाज है कि नहीं है? तो उस आली जनाब का, वो आली जनाब जो बाइसे तख्लीके कायनात हैं, बाइसे वजह कायनात हैं, बाइसे ज़ीनते कायनात हैं, उस आली जनाब हजूर के बारगाह का बहुत बड़ा अदब है, बहुत बड़ा अदब है। शाह जी, ये यकीन 2 साल मानिए पहले कि- जो वाकया हुआ था, जो नारे लगे थे चोर चोर के उधर, वो भी तो मिर्जा इंजीनियर का फॉलोअर नहीं लगाए थे, इसी के शिगिर्दों ने लगाए थे उधर, जो जी शोर जी मचा हाँ, था। जी हाँ, बेअदब लोग हैं, बेअदब लोग, बेअदब लोग हैं जी हजरत जी, बेअदब लोग, बेअदब लोग हैं। ओए मैं उधर ही था, रमजान शरीफ की अफ्तारी का टाइम था, मैं उधर ही था जब ये हुआ था, ये वाकया हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना था। समझ आई कि बेअदबी है। और ये जो वैसे मैंने देखा आज तक नहीं है, वीडियो देखी है बस, पता नहीं इसकी हकीकत क्या है कि जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ आती है, हालांकि मैंने कई 12 रबीउल अव्वल शरीफ हजूर के दरे अनवर पे गुजारी हैं, तो वो माहौल आज तक मैंने तो नहीं देखा कि कई लोग फिर नारे लगा रहे होते हैं ऊंची ऊंची, और वो गालबन एआई की बनी हुई वीडियो है या अल्लाह ही जानता है उसमें उसकी क्या हकीकत है, मुझे नहीं पता, फेक है गालबन। लेकिन अगर कोई करता, अगर अगर बेफर्ज महाल, लेकिन ये होगी बेअदबी ही, ये कोई अदब नहीं है, ये कोई इश्क नहीं है, ये अपने इश्क ना, इस किस्म के फजूल किस्म के इश्क ये पाकिस्तान में रखो या हिंदुस्तान में रखो, ये नारेबाजियां और हजूर के सामने उधर खड़े होके ऊंचा ऊंचा बोलना, ये अपने इधर ही रखो, इधर ही, ये गलास्ते इधर ही रखो। वो ना रिवायत में आता है कि ये पीछे हाथ बांधना जो है ना, जहन्नमियों का तरीका है कि वो उनके पीछे हाथ बांध के ना उनको जहन्नम में लेके जाया जाएगा। ये मुजरमों का तरीका होता है, पीछे हाथ बांधना।
मैंने ना एक आशिक रसूल को देखा कि उसने ना पीछे हाथ बांध के हजूर की बारगाह में वो हाजिर हो रहा है। मैं देख के उसको ओए होए इश्क ताजा हो गया, खुदा की कसम। मैं कहा ये है अदब। हजूर की बारगाह में तो मुजरमों की तरह जाना है कि मुजरम हाजिर है, हजूर मुजरम हाजिर है, मुजरम आ गया जे। उते फटे पुराने कपड़े लैके जाओ, उत्थे जनाब है बाल तुहाडे बिखरे होण। मुजरम जिंज मुजरम हुंदे ने ना, फिर मुजरम वाला तुहाडा हुलिया भी होना चाहिए, आंसू जारी होण, शोर शराबा नहीं करना, रोन दी आवाज ना आए, बस आंसू जारी होण। ते ओह पिछलियां जालियां दे कोल खड़े हो जाओ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ 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 ਹੀ ਰਹੋ ਬਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਵੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਗੜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਲੀਲੁਲ ਕਦਰ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਸ਼ੋਭ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ पाकिस्तान ते हिंदुस्तान च हुंदा है। उंज ही मुरीद पिछे पिछे, एक मुरीद ने जुत्ती चुकी हुंदी है, एक मुरीद हत्थ चुमरिया हुंदा है, एक मुरीद नजराने दे रहा हुंदा है। इंज आंदे ने पीर, आंदे ने इंज आंदे ने। हजूर दी बारगाह च हाजरी हो रही है जी, हाजरी हो रही है। हेलो ए जे हाजरी। ओ यार की हो तुसी, हो की हो पीरो, तुहानू एडे तकब्बुर तुहाडे च आ गया यार, एडा तकब्बुर। अल्लाह माफ करे, जिहड़ी चीज अल्लाह नू ज़ेबा है, जिहड़ी अल्लाह दी सिफते खास है, तकब्बुर। हुवा मुतकब्बिर। ओए ए वे तुहाडी सूफीयत, ओए ए वे तुहाडी इज्जतो इनकसारियां। और लोकां नू अपने मुरीदां नू की दर्स दिओगे हजूर दी बारगाह दा? और तुसी जदों तकरीरां करोगे की दसोगे भाई? ओहो ही पीर फटे पुराने कपड़े लैके आंदा, पग अपनी बाहर ही सुट के आंदा, बाल इंज बिखरे हुए हुंदे, मुरीदां नू कहंदा पिछे पिछे हो जाओ भाई, हुण मेरे कोल ना कोई आए भाई, हजूर दी बारगाह भाई। ओदे सारे मुरीद इन्ने को वड्डे आशक बनने साजे अपने पीर नू वेख के, कि भाई साडे पीर दा अमल है। समझ आई कि हजूर दी बारगाह दे अदब ने। उलामा इकबाल रहमतुल्लाही ताला अलैह आशिक रसूल सी बंदा, बड़ा वड्डा आशिक रसूल सी। वो पूरी जिंदगी हजूर दे दर ते हाजिर नहीं होया। उन्हें कहा ना मैं नहीं जाना, मैं जा ही नहीं सकता, मैं की मुंह केड़ा मुंह लैके जावां हजूर दे, गंदा मुंह लैके जावां। आजज मुनाजरा कर रहा सी एक बारी कादियानी मुरब्बी काशफ चौधरी दे नाल, रबुआ टाइम्स वाला जिहड़ा सी, ते मुनाजरा 3 घंटे दा होया। सही लित्तर ओनू फिर अल्लाह दे हुक्म नाल चुक चुक के मारिया मैं, ते बाद च उन्हां बड़ियां मुबारकबादां आईयां, बड़ियां मुबारकबादां। मेरी पहली यार सी, ते एक बंदे ने ना मैनू मैसेज किया, शाह जी अज मुनाजरा जितन दी खुशी दे विच बड़ा तुसीं लित्तर परेड कीती है मुरब्बी दी, ते मेरा दिल करदा है शाह जी तुहानू ना उमरा करावां। मेरी पहली यार सी बिल्कुल, मैं एकदम सुन के ना बिल्कुल मेरे ते तोते ही उड़ गए ना। मैं क्या मैं मदीने जाना है, मैं उन्होंने ना इनकार करता। मैं क्या नहीं, मैं नहीं जा सकता भाई, ना ना ना, मैं हजूर दे दर ते मैं हाजिर नहीं हो सकता भाई।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਮਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਹਕੀਰ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜ਼ੋਜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ शाह जी है ते तुहानू बुलावा है सरकार दा, अपना जाना कुछ और है, उनका बुलाना कुछ और। फिर ना मेरे दिल च हसरत जही आई। हुण गैरत भी गुवारा ना करे कि मैं उन्हें दोबारा कहां कि नहीं यार मैं जाना ही। आया सी बुलावा ते दिल च हुण हसरत दोबारा आई कि नहीं हजूर मेरे को तो खता हो गई है, तुसीं ते कुत्ते नूं ते इस मुजरम नूं सद्दिया है कि मेरी बारगाह च हाज़र हो, ते हजूर मैं इनकार कर बैठा है। ते गुस्सा ही है बड़ी वड्डी कि हजूर दा बुलावा आए ते फिर मुबशर शाह हाज़र भी ना होवे, एक मुजरम हाज़र ना होए, किंज हो सकदा। लो जी इस हसरत दे विच मैं अथरू जारी सन मेरियां अखां चों, ते मैं मैसेज पढ़ने शुरू किए। होर मैसेज थले काफ़ी दोस्तों के आए मुबारकबादी दे। एक मैसेज होर थले आंदा शाह जी तुहानू इस मुनाजरे की जितन की खुशी च मेरा दिल करदा मैं उमरा करावां, तो पहले उमरा कीता जे कि नहीं। मैं उस टाइम मैं कहा जी ओके जी ओके, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हजूर मैं हाज़र। ऐसी इनू कहंदे ने बुलावा, बुलावा आया सी इन्हूं, यानी कुत्ते नूं ओदे कन्ना तो धरू के पूछल तो धरू के आका हजूर ने अपनी बारगाह दे विच इंज बुलाया, इंज कि आ जा कुत्ते आ जा। ते गल्लां ऐ ने कि इश्क दे कोई नज़ारे कुछ अलग जे ने, वो फिर कई रंगां दे विच हुंदा है, कई रंगां च हुंदा है। ओहदे रंग नवल्ले ने, अलग अलग रंग ने, कई बार बार जांदे ने ते कई एक बार भी नहीं जांदे। हाँ जी, उत्थे एक मेरे दोस्त ने ते अल्लाह ने उन्होंने बड़ा दिता है माशाअल्लाह, ओहदियां अपनियां फैक्ट्रियां ने, लेकिन है मेरा दोस्त। ते यकीन मन्नियो ओ महीने च एक बारी लाजमी जाता है। उन्हें वो वीज़ा लिया आवे गालबन वो लेंदा है, साल वाला वीज़ा जिहड़ा हुंदा है ना वो ले लेंदा इक्को बारी, ते बस टिकट कटवांदा है, ते हर महीने उन्हें हजूर दी बारगाह च हाज़र होना ही होना है। फिर एक होर बंदे नूं मैं जानना वा जिहड़ा फैसलाबाद तो जांदा जे, हर जुम्मा उन्हें हजूर दी बारगाह च पढ़ना हुंदा है, हर जुम्मा। बस जिन्होंने अल्लाह ने दिता है। इश्क दे रंग अलग अलग ते जिन्होंने अल्लाह ने दिता है भाई साहिबो जाओ भाई लाजमी जाओ भाई। ए दौलत इत्थे रह जानी है, कुछ भी नहीं जे, कुछ भी। किन्ना कु खर्चा आ जाएगा यार, ये ते तुसी पाकिस्तान चो ते 4-5 लाख रुपया आ जाएगा, ते जे पता नहीं बाहर दे मुल्क चो किधरे ते 1000-2000 पाउंड या जेड़े हुंदे ने ओ डॉलर, इन्ना खर्चा आ जाएगा, किन्ना को आ जाएगा। लेकिन हजूर दी बारगाह च हाजरी लाजमी दवो भाई, होना ते यह चाहिए हर महीने तुसी हाजर होवो, ते जे हर महीने नहीं ते कम अज कम साल च करी ते लाजमी जाया करो यार। यार सब कुछ इत्थे रह जाना जे रब दियो बंदियो। एक मुजरम नू अपने आका दी बारगाह च हाजर होना चाहिए, हाजरी दवो लाजमी। इहदे नाल इश्क ताज़ा रहेगा, तुहाडा इश्क वधेगा, होर वधेगा। लेकिन यह भी गल दस दिया, जो तुसीं जान दा इरादा करोगे ना ते मसाइब बड़े आणगे, बड़ियां दुश्वारियां परेशानियां होर बड़े कम आ जाणगे। यह गल ज़हन च रखियो,
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵਸਵਸੇ ਦਵਾਏਗਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਕੁੜੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੈਲਾਬ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਦੇ ਚੱਲ, ਇਹ ਵੇਖ ਨਾ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਚੱਲ ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੋੜ ਦੇ ਉਧਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਜੇ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਥੱਲੇ। ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੌਣ? जी गुलाम रसूल साहब माइक ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब। मुफ्ती साहब क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हो, हम सुन रहे हैं। सुहेब लिखदा पिया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, जानो दिल हो शोखिरत सब मदीने पहुंचे। अल्लाह दा फरमांदे ने कि ए अहमद रजा, तेरी एक जान है, दिल वे, अकल है, ए जिस्म है, ए रूह है, ए हर चीज से तेरी मदीने पहुंची है। ते रजा तू क्यों नहीं जांदा पिया? तेरा दिल ते उत्थे वे, तेरी अकल उत्थे वे, तेरी जान उत्थे वे, सारा माल ते तेरा उत्थे पहुंचे है, तू क्यों नहीं जांदा पिया? आए हाय आए हाय हाय, जानो दिल हो शोखिरत सब मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते मुबश्शर सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते मुबश्शर सारा तो सामान गया, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरे हम मुगरकुन, खुद यदी साहिर लना अशकालना, तुम नहीं चलते मुबश्शर सारा तो सामान गया। जाओ भाई जाओ, हजूर ते दर ते जाओ भाई, जाओ भाई जाओ, हजूर ते दर ते जाओ भाई। ते आज जगह भी हजूर नू जाके सलाम अर्ज करियो जी, लाजमी सलाम अर्ज करियो जी। शाह जी, यहाँ पे 2 बातें अर्ज करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, अगर इजाज़त हो तो। एक चीज़ ये जो भी आप फरमा रहे थे कि मुजरमों की तरह जाओ, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, क्या लोगों जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ और उनसे कहो कि वो तुम्हारे हक में दुआ करे, अगर वो दुआ करेंगे तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूँ। एक चीज़।
दूसरा चीज़ जहाँ पे बात आती है अदब की और मोहब्बत की, अबू जहल हो, अबू लहब हो, अपनी आंखों से देख कर भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए, अल्लाह ने उनकी किस्मत में नहीं लिखा था। उधर अवैस करनी, जिन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी मोहब्बत में दीवाने थे वो। ठीक है, ये होते हैं इश्क के डिफरेंट पहलू कि कुछ लोग देख कर भी नहीं समझ पाते और कुछ लोग बिना देखे भी कुर्बान होते हैं। ठीक है, हम लोग तो उस उम्मत में उस वक्त पे आ गए हैं कि जहाँ से जो ना हम लोगों ने ना सहाबा को देखा, ना ताबीन को देखा, ना ताबे ताबीन को देखा। ठीक है, यहाँ तक कि किसी अल्लाह के बड़े बुजुर्ग या नेक बंदे को भी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमारा यकीन, हमारा ईमान इन सब पर है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ही सूरह बकरा की स्टार्टिंग की आयतों में फरमाया है कि वो लोग जो कि अल्लाह पर ईमान लाए और गैब पर ईमान लाए, गैब से बिना देखे अल्लाह पे, उसके नबी पे ईमान लाए, उसके फरिश्तों पे ईमान लाए। हम लोगों ने कुछ नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिर भी उनसे मोहब्बत करते हैं, उन पे ईमान लाते हैं और दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह शैतान के कानों को हमेशा बहरा रखना और उसकी अक्ल को तू अपने फजल से धोखा देना कि वो हमसे हमारा ईमान न छीन सके, किसी भी रूप में आकर किसी भी बहकावे में ला के हमसे हमारा ईमान न छीन सके। या अल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाना अपने महबूब के सदक़े में। जज़ाक अल्लाह जी। ले जा तेरी अम्मा जे शै ही कोई नहीं, ले जा अपनी अम्मा नूं परे, तेरे कोल वट्टा जम देंदी किसे मसीह ही ला के सवाब ते मिल जांदा ओनू। हाँ तुसी देखो हजूर दा जिक्र खैर हो रहा ना, इश्क प्यार मुहब्बत दीयां गल्लां हो रही ने, अपने प्यारे प्यारे हजूर दीयां गल्लां हो रही ने। वेंदे हो पे ऐओ जनीम लोग ने, जनीम जिन्हां नूं कुरान च कह दिता गया कि गुस्ताख जिहड़ा हुंदा ना असल च जनीम हुंदा है। जनीम हो नहीं सकदा कि ओ नुतफा हलाल होए और वो तौहीन करे ना, हो नहीं सकता। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह आंदा यार दी गल सुना मुल्ला, सानू औखे पैंडे ना पा मुल्ला, सानू औखे पैंडे ना पा मुल्ला। आंदा बुल्ले शाह भी फरमांदे ने ना, इल्मो बस करी ओए यार, इक्को लफ तेरे दरकार। इलम ना आवे विच शुमार, जांदी उमर नहीं इतबार, इको अलफ तेरे दरकार, इल्मो बस करियो यार। पढ़ पढ़ लिख लिख लावें ढेर, ढेर किताबां चार चफेर, गिरदे चानन विच हनेर, पुछो राह ते खबर ना सार, इल्मो बस करियो यार। पढ़ पढ़ नफल नमाज गुजारी, उचियां बांगा चांगा मारी, मिंबर ते चढ़ वाज पुकारी, कीता तेनू इलम ख्वार, इल्मो बस करियो यार। इल्मो बस करियो यार, बस इक्के अलफ तेरे दरकार। वो
कुरान ने कह छड़िया सी ना आंदा कि युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੇ ਹਦਾਇਤ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਓਏ ਯਾਰ, ਇੱਕੇ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ, उचड़ गया सब कोई यार, कुछ भी नहीं चाहिए। कुर्बे क़यामत पहुंचे है, सिर ते क़यामत आई जे। ओए होए ओए होए, बेअदबियां, गुस्ताखियां, बेबाकियां, बेशर्मियां, बेहयाइयां सरेआम। किस दौर च असी अख खोलीए यार, किस दौर च अख खोलीए। ओए होए, गुस्ताखियां सानू वेखनियां पै रही ने, सुननियां पै रही ने। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ओए होए यार, ओ चरसी ते ओ मवाली ते ओ जेड़े मैं कदी जा रहा ना वा ते फुटपाथ ते एक फटे पुराने कपड़ियां वाला एक पोडरी जिन्हों जहाज कहते ने, जहाज, वो इंज बेचारा लेटे है ते मक्खियां बह रही ने ओहदे ते। ओनू नशे च दुत वे, ओनू कोई खबर ही नहीं। ओ खुदा दी कसमे, ओए ओए तुहाडे तो करोड़ दर्जे बेहतर जे। ओए ओए बेअदबो, तुहाडे तो करोड़ दर्जे हो बेहतर, करोड़ दर्जे। वो कम अज कम अपनी जान ते जुल्म कर रहे हैं, लेकिन गुस्ताख ते नहीं ना है, बेअदब ते नहीं ना है। वो अपनी जान ते कर रहे हैं ना जुल्म, वो बेअदब ते नहीं ना है। ओ जालमो, ओए जालमो, तौबा कर लो भाई, ना करो इन्नी बेबाकियां, ना करो इन्ने बेबाक ना हो जाओ भाई कि अल्लाह दी पकड़ च आ जाओ भाई। इन्नियां बेबाकियां ना। फरमांदे ने पढ़ पढ़ मुल्ला होए काजी, अल्लाह इल्मा बाजू राजी। होवे हिरस दिनों दिन ताजी, तेनू कीता हिरस खवारी। इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। पढ़ पढ़ मसले प्या सुनावे, खाना शक शुबे दा खावे। दसे होर ते होरी कमावे, अंदर खोट बाहर सचियार। इल्मो बस करियो यार। अगे ते गल ही मुका दी है ना। फरमांदे ने जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, दरिया वेख वहदत दा वड़िया। घुमन घेरियां दे विच अड़िया, शाह अनायत लाया पार। इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। वाह 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 वाह। ऐसा इलम नहीं चाहिए यार जेड़ा यार तो दूर कर दे सन। नहीं नहीं, असी जाल ही बेहतर है यार। नहीं चाहिए जेड़ा सानू गुस्ताख बना दे, बेअदब बना दे, बेबाक बना दे। नहीं चाहिए वो इलम, और नहीं चाहिए दलीलां तेरियां। ओए और कुछ नहीं चाहिए है सानू। हाँ यार दी गल सुना मुल्ला, सानू ना औखे पेड़ने पा मुल्ला। सानू तो साडे यार दी गल सुनाओ भाई, जे है जे कोई।
ਕਰੋ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। सर जी हदीस पाक भी है ना कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास ईमान ही नहीं है, यानी कि तुम ईमान वाले ही नहीं हो जब तक कि तुम्हें मैं यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक चीज से ज्यादा प्यारा नहीं हो जाता। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी आल औलाद, तुम्हारे जान और माल, हर एक चीज से ज्यादा तुम्हें प्यारा नहीं हो जाता। तुम्हारे पास ईमान ही नहीं है। तो ये लोग जो नाउज बिल्ला अस्तगफुरुल्लाह एक गुस्ताख की सपोर्ट करते हैं, और नीचे देखें क्या क्या उसने इन्होंने कमेंट्स किए हुए। यार ये फिर किस तरीके से अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि इनको नबी के साथ कहाँ पे मोहब्बत है, कहाँ पे इश्क? मुल्हिदीन है ये, मुल्हिदीन एथीइस्ट है। इस्लाम की मेन जो बुनियाद है, मेन जो जड़ है, वो इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इश्क नहीं है उनसे, मोहब्बत नहीं है उनसे, उनका एहतराम नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। आप कितनी नमाजें पढ़ लें, कितने हज कर लें, कितनी ज़कातें दे दें, अगर इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं है। इकबाल भी कहता ना कि खिर्द ने कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी कि तुम्हारी निगाहों में और तुम्हारे दिल में जब तक आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनका एहतराम नहीं आता, जब तुम्हारी आंखें उनका जिक्र हो रोना ना शुरू कर दें, जब उनका जिक्र आए और तुम्हारा दिल तड़पे ना, तो फिर तुम समझ लो कि तुम्हारा ईमान किस जगह पर है। ईमान ही नहीं है सर। ईमान कंप्लीट ही इश्क के साथ होता है। मोहब्बत आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ईमान तब होता है, तब इंसान के अंदर ईमान आता है। वैसे थोड़ा ही बदर के मैदान में बाप ने बेटे को अपने हाथों से काटा और बेटे ने अपने हाथों से अपने बाप को उड़ाया। चचा भतीजे के खिलाफ, भतीजा चचा के खिलाफ खड़ा था। ईमान था, इश्क था, मोहब्बत थी वो आका दो जहां से। इसलिए तो दुनिया ने एक अजीब तमाशा उस दिन देखा था सर। दुनिया की हिस्ट्री को चेंज करने वाली वो जो ना मैदान था, जिसने बताया कि जब इश्क और मोहब्बत गालिब आ जाती है तो फिर कोई चीज भी उससे बढ़कर नहीं रहती है। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने फिर उन्हें फरमाया ना कि सारे के सारे बदरी जो साहबी है, सारे के सारे जन्नती हैं। वैसे नहीं जन्नतें, इतनी सस्ती चीज जन्नत नहीं है, तो अल्लाह माफ करे कि सब कुछ सोचते हैं जी कि हम लोग मुंह उठाएंगे, चल पड़ेंगे नबी पे, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, मेरे मुंह में खाक, कि आका दो जहां की जात के ऊपर एतराज भी करेंगे अल्लाह हमें जन्नत देगा ना। भूल जाना बेटा, ओए भी कर दिया अगर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ओए भी कर दिया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये जो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, इसको भी जो लोग तेजी से पढ़ जाते हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जो जुमला मैं पढ़ता हूं इसमें भी अदब और एहतराम होना चाहिए, कि ये अल्फाज वाज़ेह और साफ होने चाहिए। कितने लोग होते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गलत चीज है, ये भी चीज गलत है। समझे इस प्रोटोकॉल को, समझे इस चीज को, समझे इस लेवल को। वो किसी आम इंसान का जिक्र नहीं है, वो बहुत बड़ी हस्ती है भाई, बहुत बड़ी हस्ती है वो, जिनके लिए अल्लाह ने कुरान पाक में आयत नाज़िल फरमाई है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालो, कौन? ए ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। यार कितनी बड़ी हस्ती है कि अल्लाह उनका जिक्र कर रहा है, अल्लाह के फरिश्ते। कितना बड़ा मकाम है आका दो जहां का यार, इस चीज से अंदाजा नहीं होता तुम लोगों को।
अच्छा, ये मियाँ अजीम साहब गारबन कह रहे हैं कोई हदीस बयान कर दें। कौन सी हदीस मियाँ साहब? कह रहे हैं कोई हदीस है वो बयान कर दें। अल्लाह मेरे अल्लाह यार, हाँ, नबीना सहाबी वाली। वो वो रिवायत तो बताऊं कि एक नबीना सहाबी थे, तो उनकी एक किताबिया लोंडी थी। तो उस लोंडी के साथ जब उन्होंने वती की तो बच्चा पैदा हो गया, तो उम्मे वलद बन गई। उम्मे वलद ऐसी लोंडी के जिसका आका से औलाद हो उसको उम्मे वलद कहते हैं। तो हदीस के अल्फाज है कि सहाबी फरमाते हैं कि वो ना गुस्ताखी करती थी हजूर की। इन्होंने समझाया उसे कि तू गुस्ताखी ना किया कर। कहने लगे एक दिन क्या हुआ कि रात को मैं घर गया तो उसने फिर गुस्ताखी करनी शुरू। एक करीब ही बर्छी रखी हुई थी, मैंने उसके पेट के ऊपर रख के अपना पूरा जोर डाल दिया, उसको कत्ल कर दिया। अब हदीस के आगे एक अल्फाज है कि बच्चा जो है ना वो उसके पाँव के अंदर गिर गया और पूरी जमीन लहू लुहान हो गई। अब इसके दो मफहूम है कि एक तो ये कि वो हामिला थी तो उसके पेट के अंदर जो बच्चा था वो गिर के नीचे गिरा, और एक मफहूम इसका ये है कि वो बच्चा पहले से ही था, तो वो जब माँ को उसने देखा कत्ल होते तो वो पाँव के अंदर आ गया। तो ये दोनों मफहूम। तो साहबी फरमाते हैं कि बड़े गुलाब जैसे बच्चे उसके अंदर उसके बतन से पैदा हो गए, और वो बड़ी मुझे अजीज थी, बड़ा मैं उससे प्यार करता था, लेकिन हजूर की गुस्साही की वजह से हजूर मैंने उसको कत्ल कर दिया। सुबह हजूर की बारगाह में जब हाजिरी हुई, हजूर ने फरमाया वो सहाबी तर आ जाए जिन्होंने रात कोई अपनी जोजा को कत्ल कर दिया। सहाबी फरमाते हैं वो लरसते हुए सहाबा की गर्दनों को फलांगते हुए हजूर की बारगाह में हजूर के सामने हाजिर हुए, कांप रहे थे, लर्ज रहे थे, सारा वाकया बयान किया। हजूर ने फरमाया कि इसके ऊपर कोई जुर्म नहीं, ये बरियु जिम्मा है, इसने बिल्कुल ठीक की है। फरमाया उस वक्त तक तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार करने वाले नहीं हो सकते कि जब तक अल्लाह के रसूल को अपनी जान, माल, आल, औलाद, जाहिर और बातिन सबसे ज्यादा अजीज ना रखोगे, तो उस वक्त नहीं तुम ये दावे ना करो कि मैं बड़ा अल्लाह रसूल से प्यार करता हूं। नहीं नहीं, उस्मान लगता है पीछे गया है, बराड़ गिर जानी है। चलो कोई नहीं, फिर मंजूर है, जितनी हाजिरी मंजूर थी वो हो गई है, अल्लाह कबूल कर ले। हजूर अलैहि तहिया व सना की बारगाह अकदस में थोड़ा सा नजराना अकीदत पेश की है, बस कबूल कर ले। कबूल कर ले बस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जो रवायत मैंने सुनाई है ये अहले हदीस मकतबे फिक्र
کہ بہت بڑے عالم دین جناب علامہ ابن تیمیہ، جن کو سمجھ لے کہ وہابیوں کے پہلے مولوی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے الصارم المسلول، سرور کونین کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا، امام ابن تیمیہ۔ تو یہ روایت انہوں نے کوڈ کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بڑی روایتیں کوڈ کی ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر، اور یہ کتاب سمجھ لیں کہ عشق رسول کی ایک مثالی کتاب ہے۔ یہ 840 صفحات ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، 2-4 صفحوں والی کتاب نہیں ہے۔ شاتم رسول کی سزا کے اوپر یہ کتاب مرتب کی ہے انہوں نے۔ سمجھ آئی کہ؟ تو اس کے علاوہ اور بڑے واقعات آپ کو مل جائیں گے باحوالہ۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری۔ اچھا یار پھر اجازت دیو، ویسے براڑ تے ڈگنی والی ہے، کیونکہ عثمان براڑ تو ادھر ہو گیا ہے، تو براڑ اور منٹ ڈیڑھ چلنی ہے شاید، براڑ ڈگ جائے۔ دیکھو کنی دیر چل رہی ہے۔ ہاں جی ہاں جی، چلو جمعہ شریف کا ٹائم ہی ہو گیا، تو اجازت دیو پھر، رب رکھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی